بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس التاسع، لسان القرآن اول، الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ۔ آج ہم پڑھیں گے ضمائر مرفوعہ منفصلہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، جب ہم کسی مخاطب شخص سے کسی غائب شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے، عائشہ صبح اٹھتی ہے، عائشہ روز اسکول جاتی ہے۔ کیا ہم بات اس طرح سے کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم ایک مرتبہ اس کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ عائشہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ صبح اسکول جاتی ہے، وہ روزانہ جلدی اٹھتی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی پہلے جملے میں کسی غائب شخص کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف اس کی بات کرنے کے لیے ضمائر استعمال کی جاتی ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے امثلہ دی گئی ہیں، مثالیں دیکھیے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ حصہ الف میں ہے ضمائر الغیبتی، وہ ضمائر غائب کی ضمیریں۔ ہماری گردان کے 14 صیغوں میں 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے حاضر کے اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، اور اسی گردان کے صیغوں میں یہ ضمائر بھی اسی ترتیب سے پائی جاتی ہیں اور الگ سے ہم ان کو اس طرح سے لکھتے ہیں: ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہنہ۔ یہ غائب کی ضمیریں ہیں۔ دیکھیے مثال نمبر 1، زید ولد طیب، زید ایک اچھا لڑکا ہے، ہوا طالب فی مدرسۃ دینیۃ، وہ ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہے۔ تو جملہ نمبر 1 میں زید ولد طیب وہو طالب فی مدرسۃ دینیۃ، یہاں ہم نے پہلے زید کا نام استعمال کیا اور اس کے بعد اس کی بات کرنے کے لیے دوسرے جملے میں ہوا استعمال کیا، زیدن کی جگہ پر ہوا استعمال کیا۔ نمبر 2 ہے عائشۃ فتاۃ صالحۃ، عائشہ ایک نیک لڑکی ہے، ہی طالبۃ فی مدرسۃ دینیۃ، وہ ایک دینی مدرسے میں طالبہ ہے۔ تو دیکھیے، زید جو کہ مذکر تھا اس کے لیے ضمیر ہم ہوا لے کر آئے، اور عائشہ مؤنث ہے، مفرد مؤنث ہے، اس کے لیے مفرد مؤنث کی ضمیر ہیا لے کر آئے۔ زید و سلیم صدیقانی، زید اور سلیم دو دوست ہیں، یہ تثنیہ ہے مثنیٰ، اور مثنیٰ کو بتانے کے لیے ہم کون سی ضمیر لے کے آئے ہیں؟ ہما، ہما مدرسان فی جامعۃ الاسلامیہ، وہ جامعہ اسلامیہ میں مدرس ہیں۔ ہما وہ دونوں، کون؟ زید اور سلیم۔ عائشہ و زینب اختانی، عائشہ اور زینب دو بہنیں ہیں۔ اوپر زید اور سلیم یہ دو مذکر تھے، نیچے عائشہ اور زینب یہ دو مثنیٰ ہیں، تو مثنیٰ کے لیے بھی ہما ہی استعمال کریں گے، ہما فتاتانی متدینانی۔ نمبر 5، ہؤلاء علماء، یہ سب علماء ہیں۔ ہم عاملون بعلمہم، تو سب کے لیے جمع کے لیے ہم استعمال کیا، جمع مذکر کے لیے، اور جمع مؤنث کے لیے ہن طالبات فی مدرسۃ دینیۃ، ہؤلاء طالبات فی مدرسۃ دینیۃ، ہن صالحات، تو جمع مؤنث کے لیے ہن استعمال کیا، یہ غائب کی ضمیریں تھیں۔ حصہ ب میں ضمائر الخطابی، مخاطب کی ضمیریں ہیں۔ نمبر 1 ہے هل انت مجتہد یا زید، کیا آپ محنتی ہیں اے زید؟ تو انت ضمیر استعمال کی مخاطب کے لیے، بات کرنے کے لیے، انت بمعنی آپ۔ هل انت مجتہدۃ یا عائشہ، اے عائشہ کیا آپ محنتی ہیں؟ مفرد مؤنث کے لیے انتی۔ یا زید و سلیم، مثنیٰ مذکر کے لیے انتما۔ یا عائشہ و زینب انتما اختانی، اے عائشہ اور زینب کیا تم دونوں بہنیں ہو؟ تو مؤنث مثنیٰ، مثنیٰ مؤنث کے لیے انتما۔ یا رجال،
जमा मुज़क्कर आ अंतुम मुस्लिमूना, क्या तुम सब मुसलमान हो। या रिजालू आ अंतुम मुस्लिमूना, तो जमा मुज़क्कर के लिए अंतुम। या निसाउ अंतुन्ना शाकिरातुन, ए औरतों क्या तुम शुक्रगुजार हो। जमा मुअन्नस के लिए अंतुन्ना। अंता, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। इसके बाद है ज़माइरुल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के ज़मीरें। आना मुअल्लिमुन, मैं मुअल्लिम हूँ। आना इस्तेमाल किया। आना मुअल्लिमतुन, मैं मुअल्लिमा हूँ। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आना। नहनु मुअल्लिमानी, नहनु मुअल्लिमा तानी, तो मुसन्ना के लिए और जमा के लिए नहनु इस्तेमाल किया। नहनु मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। नहनु मुअल्लिमुना, नहनु मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमुना जमा मुज़क्कर, मुअल्लिमातुन जमा मुअन्नस दोनों के लिए नहनु इस्तेमाल किया। शरह तफसील में देखते हैं। मंदरजा बाला जुमलों में सुर्ख कलिमात ज़माइर मरफूआ मुनफसिला हैं। तो ज़माइर हैं, इन सबको ज़माइर कहते हैं। हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये ज़माइर हैं। और इनको मरफूआ इसलिए कहते हैं कि ये अक्सर मुब्तदा बनती हैं, और मुब्तदा चूँकि मरफू होता है इसलिए इनको ज़माइर मरफूआ कहते हैं। मुनफसिला ये कि ये फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं होती बल्कि अलग से होती हैं, और मुनफसिल बमाना अलग है, इसलिए इनको ज़माइर मुनफसिला कहते हैं। मुनफसिल इसलिए कि ये फ़ेल के साथ मिली हुई नहीं होती बल्कि अलग से होती हैं। फ़ेल या इसम के साथ मिली हुई नहीं होती, अलग से वाक़या होती हैं, इसलिए इनको ज़माइर मुनफसिला कहते हैं। ये गायब, मुखातिब या मुतकल्लिम पर दलालत करते हैं। ये सिर्फ मरफू वाक़या होते हैं और आमतौर पर मुब्तदा बनकर आते हैं। मुनफसिल इसलिए कहलाते हैं कि ये इसम, फ़ेल या हर्फ के साथ मिलाकर नहीं बल्कि मुस्तकिल यानी अलग लिखे जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ में भी मुस्तकिल हैं, अलग हैं। मंदरजा ज़ैल नक्शा ज़माइर मरफूआ मुनफसिला के तमाम सीगों पर मुश्तमिल है। जी, मुज़क्कर के लिए, मुफ़रद मुज़क्कर के लिए हुआ, मुफ़रद मुअन्नस के लिए हिया, मुसन्ना के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हुमा, जमा मुज़क्कर और मुअन्नस, जमा मुज़क्कर के लिए हुम, जमा मुअन्नस के लिए हुन्ना। ये गायब की ज़मीरें थी। मुखातिब की ज़मीरों में मुफ़रद मुज़क्कर के लिए अंता, मुफ़रद मुअन्नस के लिए अंती, और मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अंतुमा, और जमा मुज़क्कर के लिए अंतुम, जमा मुअन्नस के लिए अंतुन्ना। मुतकल्लिम में मुफ़रद के लिए अना, मुसन्ना के लिए नहनु, मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस, और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए नहनु। कायदा देखिए। नंबर 1, ज़मीर वो इसम है जो गायब, मुखातिब या मुतकल्लिम पर दलालत करे। यहाँ ये ज़मीर की तारीफ़ है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी किताबों में। ज़मीर वो इसम है जो गायब, मुखातिब या मुतकल्लिम पर दलालत करे। इसकी 2 किस्में हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल। मुनफसिल जो अभी हमने पढ़ ली कि जो अलग से वाक़या हो, मुस्तकिल वाक़या हो, इसम फ़ेल हर्फ के साथ मिली हुई ना हो। और नंबर 2 मुत्तसिल जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वो है मुत्तसिल। मुत्तसिल यानी इसम फ़ेल हर्फ के साथ मिलाकर लिखी हो, मिलाकर पढ़ेंगे, उसे मुत्तसिल कहते हैं। ज़मीर मुनफसिल वो ज़मीर है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए ज़मीर मुनफसिल की तारीफ़ को। वो ज़मीर है जो इसम फ़ेल या हर्फ के साथ मिलकर नहीं आती बल्कि तलफ़्फ़ुज़ और किताबत के एतबार से मुस्तकिल हैसियत रखती है। बोलने में और लिखने में अलग हैसियत रखती है, अलग से लिखी जाती है। इसके बाद देखिए नंबर 2, कायदा नंबर 2 है ज़माइर मुनफसिला हमेशा मरफू वाक़या होती हैं। मरफू क्यों वाक़या होती हैं कि वो आमतौर पर मुब्तदा बनती हैं और मुब्तदा मरफू होता है। वो ये हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये गिरदान में भी बिल्कुल इसी तरतीब से हैं। गिरदान के 14 सीगों में हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। दोबारा सुन लीजिए और आपने इसको इसी तरतीब से याद करना है।
हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। शरह तफसील के बाद है हमारे पास तमरीन नंबर 1, और आज हम इसकी तमरीन भी कर लेते हैं। मंदरजल जुमलों में अस्माए ज़ाहिरा के बजाय गायब की ज़मीरें इस्तेमाल कीजिए। जो सुर्ख अस्मा हैं ये अस्माए ज़ाहिरा हैं, इसकी बजाय हमने ज़मीरें इस्तेमाल करनी हैं। मुज़क्कर इसम के लिए मुज़क्कर ज़मीर इस्तेमाल होगी, मुफ़रद के लिए मुफ़रद, मुसन्ना के लिए मुसन्ना, मुअन्नस के लिए मुअन्नस और जमा के लिए जमा। ये अस्मा के एतबार से आपने इसका लिहाज रखते हुए इस्तेमाल करना है। जैसे नंबर 1 है अस्समाउ साफ़ियतुन। अब आपने अस्समा की जगह ज़मीर इस्तेमाल करनी है। अस्समा को हटा दिया, बाकी रह गया हमारे पास साफ़ियतुन। अब साफ़ियतुन को देखते हुए आप ये बताएं कि साफ़ियतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो आप फ़ौरन बताएंगे कि साफ़ियतुन मुअन्नस है, इसके साथ ताए मुदव्वरा है जो मुअन्नस की अलामत है। तो हम इसके साथ मुफ़रद मुअन्नस की ज़मीर लगाएंगे, हिया साफ़ियतुन। नंबर 2 है अलहिमारू बतीउन। अलहिमारू बतीउन, अलहिमार की जगह हमने ज़मीर इस्तेमाल करनी है, तो हिमार को हटा देंगे, बाकी रहा हमारे पास बतीउन। तो बतीउन को देखते हुए पता चलता है कि ये मुफ़रद है और मुज़क्कर है, तो मुफ़रद मुज़क्कर की ज़मीर हुआ इस्तेमाल करेंगे, हुआ बतीउन, हुआ बतीउन। अलकिताबु मुमज़्ज़कुन, अलकिताब ये इसम है, इसको हमने हटा दिया, इसम ज़ाहिर है, इसको हटा दिया, तो बाकी रहा मुमज़्ज़कुन। मुमज़्ज़कुन को देखते हुए हमने पता चलाया कि ये मुफ़रद है और मुज़क्कर है, तो इसके साथ कौन सी ज़मीर लगेगी, हुआ, हुआ मुमज़्ज़कुन। अलकिताबु मुमज़्ज़कुन, किताब फटी हुई है, हुआ मुमज़्ज़कुन, वो फटी हुई है। नंबर 4 है अलखियाततु माहिरतुन, दर्जन माहिर है। अलखियातत इसमें ज़ाहिर को हटा दिया, तो माहिरतुन बचा। माहिरतुन ये मुफ़रद मुअन्नस है, ताई मुदव्वरा से पता चला कि ये मुअन्नस है, तो हमने इसके साथ मुफ़रद मुअन्नस की ज़मीर इस्तेमाल की, हिया माहिरतुन, वो माहिर है, माहिरा है। नंबर 5 है अत्तुल्लाबु नशीतुना, तालिब इल्म चुस्त हैं। तो लाब को हटा दिया, नशीतुना ये जमा का सीगा है, तो हम शुरू में जमा की ज़मीर लेकर आएंगे, जमा मुज़क्कर की, हुम नशीतुना, हुम नशीतुना। नंबर 6 अन्नुक़ूदु कसीरतुन, पैसे ज़्यादा हैं। तो पीछे जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि गैर आक़िल की जमा, इसके लिए इसकी अगर हम ख़बर लेके आएँ तो मुफ़रद मुअन्नस लाते हैं, इसमें इशारा लेकर आएँ तो मुफ़रद मुअन्नस लाते हैं। इसी तरह इसके लिए अगर हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो मुफ़रद मुअन्नस की इस्तेमाल करेंगे। तो नुक़ूद ये गैर आक़िल की जमा है, इसके लिए हम इसमें इस ज़मीर ये भी मुफ़रद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, हिया कसीरतुन, हिया कसीरतुन। तो तालिबात इन 6 जुमलों में तकरीबन हर तरह के जुमले अस्माए ज़ाहिरा की जगह ज़माइर लगानी बता दी हैं, बाकी आप ख़ुद करने की कोशिश करें। और तमरीन नंबर 2 हम कल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।